how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 3, that is Excel 2016, creating worksheets. How to create the worksheet in MS Excel 2016. So in this chapter we are going to study about the Microsoft Excel, then creating custom list, how to create the custom list, how to use it, how to use autofill features, and how to move the cell content, how to do formatting, how to add formatting worksheet, and auto sum features. So let's begin. Microsoft Excel. So Microsoft Excel is a powerful spreadsheet software which help us to organize and maintain data. एक powerful spreadsheet software जो किस लिए help करता है, organize करने में, maintain करने में data को, to complete calculation and present data in graphs. ये आपके data को present करता है graphs में. So it contains data in the form of rows and columns. इसमें data किसकी form में होता है, rows में और columns की form में होता है. The row and column are collectively called worksheet. जो row और column होते हैं उन्हें एक साथ क्या कहते हैं, worksheets कहते हैं. So it organizes data in an easy manner and has some feature that help us to do complex calculations. ये organize करता है आपके data को एक बहुत easy manner में, और क्या इसमें कुछ features होते हैं जो complex calculations को easily कर देता है. Now a spreadsheet file is called a workbook. जो एक spreadsheet file होती है उसको हम क्या कहते हैं, workbook कहते हैं, which is like a notebook having many individual worksheets. जो किसकी तरह होता है, notebook की तरह होता है, जिसमें बहुत सारी individual worksheets होती हैं. Each worksheet of Excel 2016 typically has 16384 columns. कितने columns होते हैं, 16384 columns होते हैं. And how much rows, 1048576 rows. Excel 2016 has some basic features of all spreadsheets. इसमें कुछ basic features है size spreadsheets के. So look at the given picture that show the components of Excel 2016. So here this is the title bar. This is your tab. These are your tabs. This is the quick access toolbar. This is your ribbon. This is your file tab. This is your name box कि name किस column में आप enter कर रहे हो row में उसका name आ जाता है. These are your grid lines. This is your scroll bar. This is also your scroll bar. Now this is a worksheet, view of worksheets. This is your worksheet. This is your status bar. This is your zoom control button. This is your views of worksheet button. So these are your cells. This is your row heading. This is your sheet tab. Your sheet 1 and sheet 2 and sheet 3 है. So now let's talk about uses of Excel. So manipulating numbers. What is manipulating numbers? Microsoft Excel is best known for feeding and changing numeric data. ये किस लिए ज़्यादा जाना जाता है, speed करने के लिए और change करने के लिए data को. So we can use Excel. हम Excel use कर सकते हैं Excel को perform करने के लिए any kind of mathematical calculation like quickly telling, जो हमें quickly tally करना होता है marks in exams, या फिर calculating averages of our total marks etc. Now what is organized data? So we can also use Microsoft Excel for organizing data. हम अपने data को organize करने के लिए Microsoft Excel को easily use कर सकते हैं. The row and column format of an Excel spreadsheet is perfect for entering many types of data. तो perfect होता है किसी भी type के data को enter करने के लिए जो हमें track करना है. After entering the data, we can perform various sorting operations. इसे sort करने, इसे perform करने के बाद, enter करने के बाद बहुत सारी operations perform कर सकते हैं to control how data is listed. Now store data as workbook. In Excel, we can store data which we enter in it as file called workbook. हम store करते हैं data को जो हम enter करते हैं file जिसको workbook कहते हैं. Excel 2016 workbook is stored using the .xlsx file extension. Within each workbook, we can store numerous individual worksheets. हम numerous individual worksheets को store कर सकते हैं to hold our data, हमारे data को hold रखने के लिए. Now, what is share data? So Excel allows us to share our data with our other users. हमें allow करता है share करने के लिए other users के साथ. हम improve करते हैं data को from other sources, export करते हैं data को in the other file formats. To share our data with others, we can also save our data as PDF or HTML file. हमने data को save कर सकते हैं PDF और HTML file की तरह. Now, creating custom list. How to create custom list? We can create our own custom list if we are regularly entering the same data in the same order. हम अपनी custom list create कर सकते हैं same data को एक same order में enter कर रहे हैं. Just set up the list. Once हमें एक बार list set up करनी होती है and fill करना होता है and fill the handle with remember
remember it for us. So then MS Excel provide करता है built-in day of the week and month of the year list. We can create our own custom list. तो हम अपनी खुद की custom list भी create कर सकते हैं. Following are the built-in list of the week and month of the year list in Excel. So sometimes data has no natural order in it. कोई natural order नहीं होता है इसमें कभी कभी data में. हमें create करना होता है custom list and use करना होता है. built-in list क्या होती है? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. सो ये भी हो सकते हैं जैन फेब मार्च भी हो सकता है जनवरी फुल फॉर्म भी हो सकती है देन टू सॉर्ट सो वी नीड टू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट एंड यूज देन टू सॉर्ट और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए या फिर फिल करने के लिए दिस कस्टम लिस्ट इज एडेड टू अ कंप्यूटर रजिस्ट्री सो वी कैन ऑल्सो यूज इन अदर वर्कबुक्स या हमारी कंप्यूटर रजिस्ट्री में आ जाता है इसके लिए हम इसको अपनी अदर वर्कबुक्स में भी यूज कर सकते हैं रिबन कैन बी शोन और हिडन यूजिंग कंट्रोल प्लस F1 जो रिबन टैब होता है उसको आप शो भी कर सकते हो हाइड भी कर सकते हो कंट्रोल प्लस F1 की को प्रेस करके फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट क्लिक करना है आपको फाइल टैब पे देन क्लिक करना है आपको ऑप्शंस पे एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा देन क्लिक करना है आपको एडवांस पे इन द लेफ्ट पे स्क्रॉल टू जनरल क्लिक करना है आपको एडिट कस्टम लिस्ट बटन पे कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हेयर जैसे पहले आपको एडवांस पे क्लिक करना है देन न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है देन ओके पे क्लिक कर देना टाइप द लिस्ट इन द एंट्रीज फील्ड आपको लिस्ट टाइप करनी है एंट्रीज फील्ड में देन प्रेस करना है एंटर को आफ्टर एवरी आइटम इन अ लिस्ट आप जब आप एंटर कर लेते हो आप प्रेस एंटर आफ्टर एवरी आइटम इन द लिस्ट एंड क्लिक करना है आपको ऐड बटन पे आफ्टर देन एक न्यू लिस्ट ऐड हो जाएगी अभी कस्टम लिस्ट ऑप्शन फील्ड में देन क्लिक कर देना है आपको ओके पे ट्वाइस टू क्लिक ओके ट्वाइस टू क्लोज बोथ डायलॉग बॉक्सेस ओके ओके पे क्लिक करना है दोनों बॉक्सेस को क्लिक क्लोज करने के लिए Now using autofill feature. Autofill is a very useful एक्सेल फीचर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल एक्सेल फीचर है ये अलाउ करता है क्रिएट करने में एंटायर डॉक्यूमेंट और रोज ऑफ डेटा विच आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज फ्रॉम अदर सेल जो बेस्ड है वैल्यूज पर दूसरे सेल की इन अदर वर्ड्स एक्सेल कंपेयर्स द सिलेक्टेड डेटा एक्सेल कंपेयर करता है हमारे सिलेक्टेड डेटा को एंड ट्राई टू गेस द नेक्स्ट वैल्यू दैट विल बी इंसर्टेड जो हम नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट कर सकते हैं फॉलो द स्टेप्स टू यूज ऑटोफिल फीचर्स क्लिक करना है आपको फर्स्ट सेल ऑफ द सीरीज पे देन टाइप करना है जनवरी इन द फर्स्ट सेल देन आपको पोजीशन करना है अपने माउस को ऑन द स्मॉल ब्लैक बॉक्स छोटे से ब्लैक बॉक्स पे इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल द पॉइंटर चेंज कर दे द पॉइंटर विल चेंज फ्रॉम व्हाइट क्रॉस टू ब्लैक व्हाइट से ब्लैक क्रॉस पे चेंज हो गया द ब्लैक क्रॉस इज नोन एज फिल हैंडल जो ब्लैक क्रॉस है इसको फिल हैंडल कहते हैं ड्रैग करना है आपको फिल हैंडल को माउस को यूज करके अक्रॉस द रेंज ऑफ सेल दिस सेल विल फिल द रेस्ट ऑफ द सीरीज जो ये सेल होगा ये आपकी रेस्ट ऑफ द सीरीज को फिल कर देगा देन रिलीज करना आपको माउस बटन को ऑटो फिल विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द डेटा एंट्री इन द सीरीज पूरी डेटा एंट्री को उसने फिल कर दिया ऑटो फिल ने नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी ड्रैग द ऑटो फिल हैंडल अक्रॉस मोर सेल अगर हम और सेल्स पे ड्रैग करेंगे वो फिल करेगा नेम्स ऑफ द मंथ लाइक फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर फिर से वो गेम्स फिल करना स्टार्ट करेगा नाउ फैक्ट फोल्डर sometimes the range is very long कभी कभी रेंज बहुत बड़ी होती है एग्जाम्पल 12 लाइन्स होती है in such situation ब्रैगिंग फिल हैंडल till the end is bit inconvenient क्या ब्रैग करते रहो so just डबल क्लिक करना है आपको फिल हैंडल पे एक्सेल ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा till the end now moving the cell content how to move the cell content cut command is used to move text from one cell to another cell cut command यूज होता है मूव करने के लिए सेल को एक सेल से दूसरे सेल पे इन द सेम वर्कशीट और इन द अनदर वर्कशीट सो फर्स्ट आपको क्या करना है फॉलो करना है कुछ स्टेप्स को कट कमांड को यूज करके सिलेक्ट करना है आपको डिजायर्ड सेल और रेंज ऑफ सेल टू वर्किंग की डिजायर्ड सेल टू रेंज ऑफ सेल में आपको वर्क करना है देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे देन आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है कट ऑप्शन पे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपी कमांड Copy command is used when we want to duplicate the cell. जब हमें duplicate करना होता है cell content को in the same worksheet or in the another worksheet. So follow the steps to use the copy command. So, आपको select करना है cell और range of cells to be copied जो आपको copy करना है then आपको click करना है home tab पे then click करना है आपको copy option in the clipboard view then select करना है desired cell select करना है तो उसमें for the content to appear then click करना है आपको paste option पे
प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप या कंट्रोल प्लस वी भी कर सकते हो। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा आपके न्यूज सेल में, यहाँ पे अवेलेबल अपीयर हो गया ना। नाउ मूविंग like in Word 2000 text, undo and redo commands are also present in the quick access toolbar। जैसे वर्ड में 2016 में undo redo commands होता है, ऐसे quick access toolbar में present होता है। in of Excel 2016 undo command is used when we want to cancel the last step, जब हमें last step को cancel करना होता है perform in the worksheet। and redo command कैसे यूज होता है, repeat करने के लिए last step को जो आपने perform किया था अपनी वर्कशीट में। फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फॉर्मेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन एक्सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल में। ये डिस्प्ले करता है वर्कशीट एक अट्रैक्टिव एंड मोर लेजिबल आउटलुक में। A good formatting helps us to find meaning in the spreadsheet। Find करता है meaning आपकी spreadsheet में without the trouble of going through each and every individual cell। Cell with good formatting will draw attention। जो cell होता है good formatting के साथ या फिर attention करता है आपकी form draw करता है attention to important cells automatically। We can make worksheets more presentable by applying formatting feature। हम formatting feature को apply करके उसे बहुत ज़्यादा वर्कशीट को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। नाउ चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ डेटा, कैसे चेंज करते हैं फॉन्ट अपने डेटा का। फॉन्ट्स आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एंड डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं राइटिंग के। फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट टाइप। अगर आपको फॉन्ट टाइप को चेंज करना है यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू चेंज द फॉन्ट टाइप। देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे। आफ्टर दैट देन क्लिक करना है आपको फॉन्ट पे ऑप्शन पे। From the drop down present arrow in the drop down arrow present in the font group, then आपको एक drop down list appear हो जाएगी। then आपको select करना है desired font name from the list। the selected font style will be applied। changing the font size of data, font size of data को कैसे change करना है आपको follow करना है कुछ step। first आपको click करना है, select करना है आपको desired cell or the range of cell to change the font size। then आपको click करना है अपने font size पे। ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, आपको ग्रुप अवेलेबल है वहाँ पे आपको लिस्ट का जो भी है आपका फॉन्ट साइज आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड साइज फ्रॉम द लिस्ट। द सेलेक्टेड साइज विल बी अप्लाइड। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। सो आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। सो फॉलो द स्टेप्स टू डू दिस। फर्स्ट आपको क्लिक करना है अपने टैब सेल पे, डिजायर्ड सेल और सेल रेंज वेयर टू चेंज द स्टाइल। देन आपको क्लिक करना है होम टैब पे। आफ्टर आपको क्लिक करना है बोल्ड ऑप्शन पे, आपका सारा जो सेल होगा वो बोल्ड में आ जाएगा। इटैलिक के लिए आपको क्लिक करना है इटैलिक पे, वो इटैलिक में आ जाएगा। अगर आपको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है तो वो आपका अंडरलाइन कर देगा सेल को। Changing the alignment of data. Alignment means the way in which the data is set within the boundary of a cell। की जो वे होता है जिसमें डेटा सेट होता है बाउंड्री ऑफ सेल के अंदर। बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली अलाइन टेक्स्ट डेटा। एक्सेल क्या करता है ऑटोमेटिकली अलाइन कर देता है टेक्स्ट डेटा को टू द लेफ्ट एंड नंबर डेटा को राइट में। वी कैन चेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं to improve the appearance of our worksheet data। हमारी जो worksheet data है उसकी appearance को improve करने के लिए। In home tab under the alignment group, left, right, center, top, middle and bottom alignments option are present। yes, the left, right, top, middle, bottom और center option available है आपके सामने। आपको select करना है desired alignment to apply on the desired cell of or cell range to apply to align। Fact folder. The first spreadsheet software was Visculp, launched in 1979। कब हुआ था लॉन्च? 1979 में डिजाइन हुआ था फॉर एप्पल सेकंड कंप्यूटर। चार्ल्स सिमोनी इज कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सेल। चार्ल्स सिमोनी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्जिंग सेल्स। टू और मोर एडजेसेंट सेल कैन बी मर्ज्ड। ये मर्ज हो सकता है टू क्रिएट अ सिंगल सेल यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। यूज करके मर्ज और सेंटर ऑप्शन को फॉलो द स्टेप्स टू यूज मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। सेलेक्ट करना आपको रेंज और सेल जो आपको मर्ज करनी है एंड सेंटर अलाइन एंड आपको क्लिक करना है होम टैब पे। देन क्लिक करना है आपको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे जो प्रेजेंट है आपका अलाइनमेंट ग्रुप पे। अ लिस्ट विल अपीयर हैविंग 4 सब ऑप्शन दैट इज मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज। ये अवेलेबल है आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे। सो पहले आपको क्रिएट करना है, सेल पे क्लिक करना है, देन होम टैब पे, देन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। नाउ कैसे बॉर्डर्स को ऐड करते हैं? वी कैन ऐड बॉर्डर्स टू आवर वर्कशीट। हम अपनी वर्कशीट में बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हैं जो सेपरेट करता है डेटा को फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। फॉलो द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर्स।
फर्स्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू ऐड द बॉर्डर, किसमें आपको बॉर्डर ऐड करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे एंड क्लिक करना है आपको बॉर्डर ऑप्शन पे, जो टू ओपन द ड्रॉप डाउन arrow present in the font group. So the different types of border will appear. After that आपको select करना है, click करना है desired border जो भी आपको चाहिए from the list. The selected border style will be applied to your desired cell range. We can also change the border color. हम border के color को भी change कर सकते हैं. Adding a background color. Background color को कैसे add करते हैं? Follow the steps to add a background color. First आपको select करना है cell और range of cells to add a background color. कहाँ पे आप add करना चाहते हैं background color? देन आपको क्लिक करना है होम टैब पे, देन क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे और फिल ऑप्शन प्रेजेंट जो आपके पॉइंट ग्रुप पे कलर पैलेट विल अपीयर, जो एक कलर पैलेट होती है वो अपीयर हो जाएगी. सेलेक्ट करना है आपको डिजायर्ड कलर फ्रॉम द लिस्ट. द सिलेक्टेड कलर विल बी अप्लाइड, जो सिलेक्टेड कलर होगा अप्लाई हो जाएगा सेल में और रेंज ऑफ सेल्स में. सो फैक्ट फोल्डर टू यूज अ कस्टम कलर, अगर कस्टम कलर को यूज करना है आपको क्लिक करना है मोर कलर्स पे एंड देन इन द कलर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करना है आपको डिजायर्ड कलर्स को. Now auto format feature. There is predefined list. A predefined list of layout in Excel. These layout have colored backgrounds, borders, and attractive text formatting. These can be applied to a range of data. जो layouts होते हैं इनमें colored backgrounds होते हैं, borders होता है, attractive text formatting options available होता है. ये क्या होता है? These can be applied to a range of data. ये हमारे range of data में apply कर सकते हैं. So follow the steps to add the auto format option in the quick access toolbar. कि कैसे करते हैं एडम auto format feature को, options को अपने quick access toolbar में. फर्स्ट आपको क्लिक करना है क्विक एक्सेस टूल बार पे, सो बटन पे, देन क्विक एक्सेस टूल बार एक लिस्ट अपीयर करेगा आपके सामने, देन आपको क्लिक करना है मोर कमांड्स पे. आफ्टर दैट एक लिस्ट एंड देन क्लिक करना है आपको ऑल कमांड्स पे. इसके बाद आपको मोर कमांड्स के बाद आपको क्लिक करना है ऑल कमांड्स पे फ्रॉम द लिस्ट जो आपके सामने अपीयर होगी. देन सेलेक्ट करना है आपको ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक करना है आपको ऐड बटन पे टू मूव द ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन ऑन द राइट साइड ऑफ द लिस्ट बॉक्स. ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को राइट साइड में मूव करने के लिए अपने लिस्ट बॉक्स के. देन यू हैव टू क्लिक ऑन इन द लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन. सो द ऑटो फॉर्मेट बटन विल बी एडेड टू द क्विक एक्सेस टूलबार. नाउ अप्लाइंग ऑटो फॉर्मेट फीचर. ऑटो फॉर्मेट फीचर को कैसे अप्लाई करते हैं? फॉलो द स्टेप्स टू यूज ऑटो फॉर्मेट फीचर. आपको सेलेक्ट करना है सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू अप्लाई ऑटो फॉर्मेट. देन आपको क्लिक करना है ऑटो फॉर्मेट आइकन पे क्विक एक्सेस टूलबार में. देन ऑटो फॉर्मेट विंडो विल ओपन डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स. वो डिस्प्ले करेगी वैरायटी ऑफ पैटर्न्स आपके सामने. देन आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड पैटर्न को. देन आपको क्लिक करना है ओके पे टू अप्लाई द पैटर्न. द पैटर्न विल बी अप्लाइड ऑन द स्प्रेडशीट. पैटर्न होगा आपकी स्प्रेडशीट पे अप्लाई हो जाएगा. नाउ फॉर्मेटिंग नंबर्स. नंबर फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ नंबर विदाउट चेंजिंग देयर वैल्यूज. ना अपीयरेंस जो होता है नंबर का उसको चेंज करो, उसकी वैल्यूज को चेंज करे बिना. हैंस व्हेन वी चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ नंबर इट विल चेंज इन द सेल. जब हम अपीयरेंस चेंज करेंगे नंबर की तो चेंज हो जाएगा सेल में, बट रिमेन रहेगा एट द सेम, रिमेन सेम इन द फॉर्मूला बार. सेम रहता है वो फॉर्मूला बार में. लेट्स टेक अ नंबर 1 2 5 4 5 6 6 and display it as 1 2 5 4 5 6 is 0.00 in a cell. Follow the steps to change the appearance. appearance को चेंज करने के लिए हम कुछ फॉलो करेंगे कुछ स्टेप्स को. फर्स्ट आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है सेल, देन सिर्फ क्लिक करना है आपको होम टैब पे. देन आपको क्लिक करना है ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑन द फॉर्मेट ग्रुप. देन ऑप्शन फॉर्मेट ऑप्शन प्रेजेंट इन द सेल ग्रुप. देन ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी. देन आपको सेलेक्ट करना फॉर्मेट सेल ऑप्शन from the list. A format cell dialog box will appear from the category list. So enter करना है आपको 2 enter करना है अपने decimal place पे बॉक्स पे. it वो डिस्प्ले करेगा नंबर ऑफ 2 decimal places. then आपको क्लिक करना है on the use thousands separator comma check box पे 2 separate numbers in the thousand by a comma. Now then click कर देना आपको ओके बटन पे. द नंबर विल बी गेट डिस्प्लेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा. इन अकाउंटिंग स्टाइल द डॉलर साइन इज शोन बाय डिफॉल्ट. डॉलर साइन डिफॉल्ट से आता है अकाउंटिंग स्टाइल में. वी कैन चेंज द करेंसी साइन. आप करेंसी साइन को चेंज कर सकते हैं फॉर सिलेक्टेड सेल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. करेंसी साइंस आर ऑल लेफ्ट जस्टिफाइड. ये सब जस्टिफाइड है. डेट्स टाइम फॉर्मेटिंग.
सो इन एमएस एक्सेल वर्कशीट वी कैन डिस्प्ले डेट एंड टाइम, हम डिस्प्ले करते हैं डेट एंड टाइम को सेवरल फॉर्मेट्स पे. वी कैन ऑल्सो चेंज द वे द डेट अपीयर्स इन द वर्कशीट, हम वे चेंज करते हैं कि कैसे डेट अपीयर होती है वर्कशीट में. फॉलो द स्टेप टू चेंज डेट टाइम फॉर्मेट. क्लिक करना है आपको होम टैब पे, फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स अब ओपन होगा. देन आपको ग्रुप्स पे जाना है, नंबर गो टू नंबर ग्रुप्स. देन आपको क्लिक करना है डेट और टाइम पे इन द कैटेगरी फील्ड. देन चूज करना है आपको टाइप फील्ड, क्लिक करना है आपको ओके पे. वी कैन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग टू अप्लाई डेट. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग को यूज कर सकते हैं हम डेट को अप्लाई करने के लिए. फॉर्मेट डेट अप्लाई, to apply date format with the day, month and year. Now to enter current date press करना है आपको control plus shift and at the rate of is used to apply time. ये time apply करने के लिए यूज होता है, time format को apply करने के लिए अब यूज होता है with the hours and minute and am और pm. Then to enter current time press करना है आपको control plus shift को, current time को enter करने के लिए आपको control plus shift press करना है. Now let's talk about AutoSum feature. AutoSum feature of Excel 2016 is used to quickly find the sum of a series. किससे यूज होता है? Quickly find करने के लिए sum of series in a row or column. Follow the steps to use the AutoSum feature. आपको enter करना है series of marks obtained by a student in class 6. Then to find the sum, अगर ऑफ द मार्क्स, अगर आपको सम निकालना है मार्क्स का, फर्स्ट सेलेक्ट करना है आपको सेल को जिसमें डेटा है, इंक्लूडिंग द सेल इन विच वी वांट टू डिस्प्ले द सम, जिसमें हमको सम को डिस्प्ले करना है. देन आपको क्लिक करना है होम टैब पे. देन आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ऑटो सम ऑप्शन बॉक्स इन द एडिटिंग ग्रुप. देन आपको क्लिक करना है सम पे. द सम विल अपीयर इन द डिजायर्ड सेल, जो सम होगा आपके डिजायर्ड सेल में अपीयर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू ऑल लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑन दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.